آج بجٹ کا دن ہے، ریلیف ملے گا یا مہنگائی میں ہوگا مزید اضافہ؟ کچھ سستا ہوگا یا پھر کمر توڑ مہنگائی مزید قہر ڈھائے گی؟ عوام کو وفاقی بجٹ کا انتظار ہے جو شام 4 بجے پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے کی خوشخبری سنا دی ہے، اور دوسری طرف اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں مہنگائی، درآمدات، سرمایہ کاری، تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ 9,000 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ خسارہ 4,000 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ عوام پر 7,000 ارب کے ٹیکسز لگانے کی تجویز۔ عوام کے لیے سبسڈی کی مد میں 578 ارب روپے مختص کی جانے کا امکان ہے۔ نان فائلرز کے لیے ٹیکس شرح بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ دفاعی بجٹ 1,523 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے 523 ارب مختص کیے جائیں گے۔ IMF کی سخت شرائط پر پیٹرول اور بجلی پر سبسڈی ختم ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی خوشخبری سنا دی۔ کہا ملک ڈیفالٹ سے اب استحکام کی جانب آ گیا۔ تو بہرحال ہمیں کچھ مشکل فیصلے لینے پڑے، اور جو ایمیننٹ ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا۔ رواں مالی سال کے اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق مہنگائی، درآمدات، سرمایہ کاری، تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ معاشی ترقی کی شرح 6% کے قریب، مہنگائی 11.3%، جبکہ صنعتی شعبے میں شرح نمو 7.8% ریکارڈ کی گئی۔ تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ وفاقی بجٹ 2022-23 کن شعبوں پر کتنے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں؟ نیو نیوز نے پتہ لگا لیا ہے۔ فائنانس بل میں نئے ٹیکس لگانے کی تجاویز شامل کی گئی ہیں۔ آن لائن اور سوشل میڈیا سے آمدنی پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ بین الاقوامی سفر کے لیے بزنس کلاس پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیوں پر 1% ٹیکس تجویز کیا گیا ہے۔ نان فائلرز کے لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر 2% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ پاکستان سے باہر کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے پر ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں عوام پر 350 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کی گئی ہے۔ تقریباً 100 ارب روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تفصیلات جاننے کے اپنے نمائندے ریاض ٹیم سے۔ ریاض، کیا اطلاعات ہیں؟ ریاض تھیم سے بھی ہم رابطہ قائم کریں گے۔ کھادوں پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ہے۔ بھاری منافع کمانے والے شعبوں پر 3% کارپوریٹ ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ ریاض تھیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ریاض، بتائیے گا ان تجاویز کے بارے میں۔ جی، اس وقت حکومت کو جن شعبوں پر چیلنجز کا سامنا ہے اس میں جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ درآمدات میں کمی ہے۔ اس وقت درآمدات 45 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسوں کا بھاری بوجھ ہے، بہت بڑے پیمانے پر ٹیکس لیے گئے ماضی میں، اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ نئے مالی سال کے بجٹ میں جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں نئے، اس حوالے سے بھی فائنانس بل میں مختلف تجاویز دی گئی ہیں جو کہ بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ 2022-23 میں جن شعبوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز ہے اس میں آن لائن اور سوشل میڈیا سے آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز شامل کی گئی ہے۔ بین الاقوامی سفر کے لیے بزنس کلاس پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیوں پر 1% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ نان فائلرز کے لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر 2% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح پاکستان سے باہر جو کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں ان پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ بجٹ میں عام آدمی کے حوالے سے جو مختلف چیزوں پر ٹیکس لگایا جائے گا اس میں 350 ارب روپے کی کیلکولیشن کی گئی ہے کہ اس کا اضافی بوجھ عام آدمی کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ بڑی کلاس اور عمرہ طبقہ اور لگژری کلاس کے لیے بھی ٹیکس تجویز کیے گئے ہیں۔ تقریباً 100 ارب روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ہے کہ جو مختلف شعبوں میں انکم ٹیکس کی بعد میں ایگزمپشن دی گئی ہیں، استثناء دیا گیا ہے، وہ ختم کر دیا جائے گا۔ کھادوں پر سیل ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ہے، جبکہ بھاری منافع کمانے والے شعبوں پر 3%۔ بہت شکریہ ریاض ٹیم آپ کا۔ بجٹ میں ریلیف کی امید نہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، حکومت کو کوئی فکر نہیں، عوام کا حکومت سے شکوہ۔ کہتے ہیں کہ حکومت اپنے خرچ سے کم کرنے کی بجائے عوام کو تکلیف میں ڈال رہی ہے۔ ٹیکسز میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ ہم تو ہمیشہ سے یہ دیکھتے ہیں جب بھی بجٹ آیا تو موجودہ جو ریٹ چل رہے ہوتے ہیں اس سے مزید اس کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ خود سوچے کہ غریبوں کا جو ہے نا یہ جو ان کی تنخواہیں ان میں گزارا نہیں ہے،
अच्छा से अच्छा रिलीफ दे गवर्नमेंट। बजट तो आप साल में 10 दफा पेश भी कर दे, कोई वो बात नहीं है। महंगाई इतनी हो रही है, कहाँ से बजट का बंदा जमा करेगा। आज जो बजट पेश किया जाएगा मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रिलीफ मिले आवाम को। बजट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये हर साल की तरह जो अपोजिशन के मुताबिक ये गोरख धंधा होगा और हुकूमत के मुताबिक सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज होगा। अल्लाह करे बजट अच्छा अपना बना लें, मतलब कि जो जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं इन्होंने, आवाम पे बम गिराया, बिजली तो पूरी कर दें, बजट तो पास होते ही रहेंगे। सर ये बजट अब पेश होने वाला, जैसे कि आपको पता है बड़ा, तो हम तो यही कह रहे हैं कि बजट जिस तरह आए अल्लाह करे इसमें जो है ना खुशहाली हो, पड़ी रेट वगैरह हर चीज़ के कम हो पड़े, ताकि किसान को भी फ़ायदा हो। हर चीज़ में नुकसान होता जा रहा है, जो भी चीज़ ले रहे हैं उसमें महंगाई होती जा रही है। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़ ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे दी। सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि तनख्वाह 100% बढ़ जाए या फिर भी महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करे। मुख्तलिफ चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान अपने घर के लिए इस्तेमाल करता है, उसमें इतनी महंगाई आ गई है कि उसको क़ुव्वत ख़रीद बंदा नहीं सकता। हमारी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि महंगाई के तनासब से, जैसे महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है उसी हिसाब से जो है ना तनख्वाहें भी बढ़ानी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट मुलाजिम ईमानदारी से काम कर सके और अपने भी बच्चों का पेट पाल सके। महंगाई के तनासब से तो 100% तनख्वाह बढ़े तो फिर गुजारा हो सकता है। जैसे ये सुनने में आया गवर्नमेंट 10% बढ़ा रही है या 8% या 15%, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। जैसा कि आप मुल्क के हालात देख रहे हैं तो 10% तो क्या, अगर गवर्नमेंट इस वक्त मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 200% भी इजाफा कर दे तो शायद हम इसकी बराबरी, जो महंगाई है इसकी बराबरी करने के काबिल हो जाएं। जितनी महंगाई हो रही है इसके मुताबिक तो ये कम अज़ कम 50% भी करें, ये भी कम है। तो बेहतर तो ये है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। बजट दस्तावेजात की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इत्तेहादी जमातों को बजट तजावीज़ पर एतमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म ने इजलास 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। मज़ीद मालूमात हम लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर। जी बिल्कुल, आज वफाकी बजट 2022-23 पेश किया जा रहा है और उसके लिए ज़ाहिर है जो आज के दिन के अहम फेजेज हैं उनमें इम्पोर्टेंट फेज जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हुआ है। 12 बजे का वक्त था और अभी कुछ देर कबल ये इजलास शुरू हो गया है। ज़रा का ये बताना है कि इसमें जो बजट दस्तावेजात हैं उनकी मंजूरी दी जाएगी और ख़ास तौर पर इसमें जो इम्पोर्टेंट मसला है वो आमतौर पर इसी काबीना का जो इजलास होता है बजट के रोज़ उसमें तय किया जाता है, वो है मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बढ़ोतरी का मामला। उसके बारे में 2 आरा सामने आई हैं अभी तक के 5 से 10%, और दूसरी तरफ जो सरकारी मुलाजमीन है जिनकी गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खजाना से मुलाकात हुई थी, इस वक्त वो एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके हवाले से 10 से 15% जो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बात की जा रही है। और इत्तेहादी जमातों का इजलास जो है वो जुमा के बाद 2 बजे जुमा की बात होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। जबकि तासिर बरादरी ने बजट में रिलीफ की उम्मीद लगा ली है। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात का कह रहे हैं कि हुकूमत ने अगर बजट में कारोबारी अफराद को टैक्स छूट न दी तो तासिर तबके के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। मजीद हम जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शौकत वट्टू से, जो कि मार्केट में ताजरों के साथ ही मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी बजट जो है वो आज पेश होने जा रहा है और इस बजट से जो है वो आम तबकात के साथ साथ जो है वो ताजर तबका उसने भी बहुत सारी उम्मीदें जो है वो वाबस्ता कर ली हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजर नुमाइंदगान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। गाहक कस्टमर जो हैं वो इधर आ रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने को तैयार नहीं है। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि वो कस्टमर करें क्या। आवाम का खून चूसने वाली बात है। इस बजट में कोई कुछ नहीं रिलीफ मिलेगा, वही चीज़ें चलेंगी जो पहले चल रही हैं। अशिया खुर्दनोश और अशिया ज़रूरिया पर जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं उसको कम किया जाए ताकि जो है वो ताजरों को भी रिलीफ मिल सके और आवाम को भी रिलीफ मिल सके, क्योंकि अगर कारोबार चलेंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा और मुल्क भी जो है वो माशी तौर पर तरक्की करेगा। जी, और अभी आपको बताएंगे डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की तहकीकात मुख्तलिफ ज़ावियों से की जा रही है। पुलिस ने सर्द खाने की इंतजामिया को हिदायत की है कि लाश बगैर इजाज़त किसी के हवाले ना की जाए। उनके ज़रिए इस्तेमाल अशिया पुलिस ने तहवील में ले ली है। क्राइम सीन यूनिट ने फिंगरप्रिंट्स लिए, मुलाजमीन से भी पूछताछ की। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा अदा करने का ऐलान किया गया है।
डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई, पुलिस की तहकीकात जारी। आमिर लियाकत की मैयत किसी के हवाले न की जाए, सिंध पुलिस ने सर्द खाने की इंतजामिया को हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में सर्द खाने की इंतजामिया से कहा गया है कि आमिर लियाकत की मैयत अमानतन सर्द खाने में रखवाई गई है। ब्रिगेड पुलिस की इजाजत के बगैर किसी के हवाले न की जाए। मौत की वजूहात जानने के लिए पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश कर रही है। आमिर लियाकत का कमरा सील कर दिया गया, उनके जेर इस्तेमाल अशिया पुलिस ने तहवील में ले ली। क्राइम सीन यूनिट ने फिंगरप्रिंट्स लिए, मुलाजिमीन से भी पूछताछ की। पुलिस ने लवाहिकीन से लाश का पोस्टमार्टम करवाने को कहा है, जबकि जिला अस्पताल इंतजामिया का कहने के अहले खाना ने पोस्टमार्टम से मना किया है। डॉक्टर आमिर लियाकत की नमाज जनाजा और तदफीन में ताखीर का खदशा है। कराची पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, जबकि आमिर लियाकत की पहली अहलिया बुशरा पोस्टमार्टम करवाना नहीं चाहती। बेटी के साथ सर्द खाने वो पहुंच चुकी हैं। एसपी सरदार और एसएचओ ब्रिगेड सर्द खाने पहुंच चुके हैं। अहले खाना अगर अदालत से इजाज़तनामा ले आए तो तदफीन की इजाज़त दी जाएगी। आमिर लियाकत का बेटा अहमद आमिर भी सर्द खाने पहुंच चुका है। पुलिस हुकाम ने कहा है आमिर लियाकत के बेटे को पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने मजीद क्या कहा है ये हम जानेंगे रजब अली से। रजब अली बताइएगा। जी, जैसा कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत के वजह का तयन नहीं हो सका था, लिहाजा पुलिस जो है वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती। इस हवाले से एसएसपी चीफ जो है अब्दुल रहीम शिराजी, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि पुलिस ने जो गुज़िश्ता रोज क्राइम सीन यूनिट ने जो तमाम शवाहिद इकट्ठा किए थे उसकी रोशनी में भी तहकीकात की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब वजह मौत का तयन न होने की वजह से पुलिस ये चाहती है कि लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। इसीलिए जो है वो पुलिस ने एक तहरीरी जो है वो खत भी जो है वो छिपा सर्द खाने की इंतजामिया को लिखा है कि पुलिस की बगैर इजाजत जो है वो किसी को भी लाश हवाले ना की जाए, बसूरत दीगर जो है वो कानूनी कार्रवाई इस हवाले से की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि उनके अहलखाना का किसी तरीके से राजी किया जाए कि वो पोस्टमार्टम कराने पर राजी हो जाए। जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि अगर जो है वो अहलखाना राजी नहीं होते तो उनके पास दूसरा रास्ता अदालत से रुजू करने का है, और अदालत की इजाजत अगर अदालत की जानिब से इजाजत दी जाती है और अहलखाना ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनकी जो है वो मौत जो है वो तबई मौत एक्सेप्ट कर लेते हैं और अदालत के सामने रूबरू पेश हो जाते हैं, तो लिहाजा अदालत की इजाजतनामे को रोशनी में जो है वो पुलिस उन्हें जो है वो लाश हवाले कर देगी। फिर उसके बाद जो है वो तदफीन के मराहिल जो है वो मराहिल का आगाज हो जाएगा। शुक्रिया आपका रजब अली। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दिन के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलने और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। सरगोदा, खुशाब, खक्कर, लिया, मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, छंग, कसूर, खानेवाल, बहावलपुर, रहींजा खान, टीजी खान में आंधी भी आ सकती है। अंदरूनी सिंध के इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे की तवक्को है।